السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر کریں گے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مصر کی بادشاہت عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ کنعان اور ملک شام کا اختیار بھی عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سلطنت کو 1000 سال تک قائم رکھا، اور پھر اس کی سلطنت میں کوئی بھی دن، کوئی بھی وقت ایسا نہ گزرا جس میں اسے قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا ہو یا بھوکمری کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کو اتنی نعمتیں عطا کی، اتنی نعمتیں عطا کی کہ اس بادشاہ کی سلطنت میں ہر چیز اس کے زیر سایہ تھی، ہر چیز اس کے اختیار میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہر طرح کے سامان مہیا کیے، ہر طرح کی نعمتیں اس کو عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہر چیز نوازی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو 1000 سال کی عمر عطا ہوئی، اور اس کو کبھی بھی کوئی زبان نہ پہنچا، اور پھر اس بادشاہ کا جو اس کو کبھی بھی کوئی زکام، کھانسی، بخار جیسی بیماری تک نہ پہنچی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اتنی ساری نعمتیں عطا کی، تو پھر کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کی سلطنت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا؟ آخر کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سلطنت کو ختم کیا؟ آخر وہ کون سا گناہ کرنے لگا؟ آخر اس نے ایسا کون سا کام انجام دیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سلطنت کو ہی نیست و نابود کر دیا، اور آج اس کی سلطنت کا نام لینے والا کوئی موجود کیوں نہیں؟ آئیے ہم ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کا ذکر قرآن پاک میں فرعون کے نام سے کیا ہے، اور تاریخ اسلام میں بھی اس کا نام فرعون ہی رکھا گیا ہے، اور اس کا ذکر فرعون ہی کے نام سے کئی مرتبہ کیا گیا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اتنی ساری نعمتیں دی، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ رب العزت کی بندگی کرتا، اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوتا، اس کی عبادت و ریاست کرتا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا، لیکن اس نے اس کے برعکس اپنے آپ کو ہی خدا کہلوانا شروع کر دیا۔ جب اس نے اپنے آپ کو خدا کہلوانا شروع کیا، تو پھر اس نے اپنی رعایا میں حکم صادر کیا، جو اس کو خدا نہ مانے تو وہ اس کی رعایا میں نہیں رہ سکتا، اور پھر اس طرح سے اس نے تقریباً 70,000 ایسی عورتوں کو آگ کے سپرد کیا جو کہ پیٹ سے تھی، اور پھر اس کے بعد نہ جانے کتنے لوگوں کو قتل عام کیا۔ جب اس کا فساد زیادہ بڑھنے لگا اور اس کی سلطنت میں رہنے کا صرف ایک واحد ذریعہ تھا کہ اس کو اپنا خدا مانو، اس کو اپنا خدا تسلیم کر لو، اس کی سلطنت میں رہ لو، لیکن کچھ لوگ اس کے ظلم کی وجہ سے، کچھ لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے، اور کچھ لوگ اس کو خوشی سے خدا ماننے کے سبب اس کی رعایا میں رہنے لگے، اور پھر جب اس کی ظلم حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو لوگوں نے غاروں میں جا کر، اونچے اونچے پہاڑوں پر جا کر اپنے گھروں میں خدا رب العزت سے التجائے کرنے لگے، اے اللہ، ہمیں تو اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچا لے، اے اللہ تو ہمیں اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچا لے۔ جب ہر طرف سے یہی دعائیں کی جانے لگی، تو پھر ایک مرتبہ فرعون اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ اچانک اسے خواب آتا ہے۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک بیت المقدس کی طرف سے ایک تارا ٹوٹ کر اس کی گود میں آ کر کے گرا ہے۔ اس تارے کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس کا محل، یعنی فرعونی محلات جو تھے، اور جو فرعونی لشکر تھے، اور جو فرعونی درباری تھے، سب کے سب اس تارے کی آگ میں جھلس کر ختم ہو جاتے ہیں۔ جب وہ یہ خواب دیکھتا ہے،
चौंक कर उठता है, सारे नजूमियों को अपने पास बुलाता है और बुलाने के बाद सबसे अपना ख्वाब बयान करता है और फिर सबसे अपनी ताबीर पूछता है। तमाम के तमाम उस ख्वाब की ताबीर बताने के लिए लग जाते हैं। तब सबके सब उस ख्वाब की ताबीर बताने के लिए लगते हैं और सबके सब एक नतीजे पर पहुंचे। तमाम के तमाम नजूमियों ने अपना एक सरदार मुंतखब किया और वो सरदार तमाम नजूमियों की तरफ से एक नतीजे पर पहुंचकर उस बादशाह को आगाह करता है कि आपने जो ख्वाब में देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक सितारा टूट कर तुम्हारी गोद में गिरा है और उसने तुम्हारी सल्तनत और फिरौनी जो लश्कर थे तमाम को जलाकर झुलसा दिया, लेकिन बनी इसराइल का कुछ भी बाल बांका न हुआ। इसका मतलब ये है कि बनी इसराइल में यानी बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द बनी इसराइल आबाद है। तो बनी इसराइल अनकरीब बनी इसराइल में एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत के ज़वाल का जरिया बनेगा, जो तुम्हारी सल्तनत को खत्म कर देगा और तुम्हारी सल्तनत को तोड़कर पास पास कर देगा। जब बादशाह ने ये सुना तो उसने बनी इसराइल के खिलाफ एक हुक्म सादिर किया कि बनी इसराइल के लोग मर्द अपनी औरतों से अलहदा हो जाएं और जो औरतें 4 माह की पेट से हैं वो अपने अपने बच्चों को गिरा दे और जो 5 या उससे ज्यादा माह की हैं उन तमाम के ऊपर उसने अपने जो उसके लश्कर के सिपाही थे उनको मुंतखब कर दिया कि जो भी बच्चा पैदा हो वो फिरौन के दरबार में लाया जाए। इस तरह से उसने उसने उस बच्चे को पैदा होने से रोकने की बेहद ताबीरें की, लेकिन फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुद हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। इधर फिरौन अपनी चाल चल रहा था, उधर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी चाल चली और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में एक बात डाली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा आपको जब विलादत का वक्त करीब आया तो आपकी वालिदा एक गार में चली जाती हैं। जब आपकी विलादत हो जाती है तो उसको संदूक में कैद बंद करके दरिया में डाल देती हैं। इधर अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुफिया तदबीर थी कि वो संदूक चलता चलता दरियाए नील के साथ साथ बहता रहा हत्ता के वो फिरौन के दरबार के पास जाकर रुका। फिरौन ने उस दरबार से अपने दरबारियों से उस ताबूत को निकलवाया और जब बच्चा देखा तो बच्चा बहुत ज्यादा खुशगवार था, बहुत ज्यादा खूबसूरत था। गोया के उस बादशाह ने उस बच्चे को अपने घर पर रख लिया और परवान चढ़ाने लगा। इधर नजूमियों ने बादशाह को आगाह किया कि ऐ बादशाह वो बच्चा पैदा हो चुका है, वो बच्चा खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। इधर नजूमियों ने फिरौन को बताया, इधर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तदबीर चली और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जवानी के दिनों को पहुंच गए। हत्ता के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने पहली वही नाजिल फरमाई कि ऐ मूसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीबी के साथ सर्दी की सर्द रातों में अपनी बीबी के साथ किसी जगह पर जा रहे थे कि अचानक आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है। आप अपनी बीबी से कहते हैं आप यहाँ बैठो, सामने आग दिख रही है, मैं वहां पर जाता हूँ और वहां से कोई कोई जवाब लेकर के आता हूँ या फिर मैं वहां से एक आग का शोला लेकर के आ जाऊंगा जिससे कि हमारी ठंड दूर हो जाएगी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस आग की तरफ को जाते हैं। जैसे ही उस आग के पास पहुंचे तो एक अजीब मंजर था। वो आग किसी जगह पर नहीं थी बल्कि एक दरख्त की जड़ पर थी और उस जड़ की
उस आग का जड़ पे लगने की वजह से उस दरख्त की शाखों तक उसकी रोशनी फैल रही थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास पहुंचे तो वही होती है कि ए मूसा, मैं ही तुम्हारा रब हूँ और तुम मेरी ही इबादत करो, इसके अलावा कोई तुम्हारा रब नहीं, तुम किसी की बंदगी नहीं कर सकते। और ए मूसा, अपनी चप्पलें उतार कर मेरे पास आओ। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी चप्पलें उतारते हैं और फिर उस आग की तरफ को बढ़ते हैं। यानी जब वो आग के करीब पहुंचे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर पहली वही नाजिल फरमाकर उनको फिरौन की तरफ जाने की हिदायत फरमाई। और फिर हत्ता के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में जाते हैं और फिर फिरौन को अपनी रिसालत और अल्लाह तबारक व तआला के गजब से डराते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें याद दिलवाते हैं। लेकिन जो फिरौन था, उसके दिल पर मोहर लग चुकी थी, उसकी अकल पर पर्दे पड़ चुके थे, वो ईमान न लाया, बल्कि उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम एक जादूगर हो, इसके अलावा कुछ नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से रसूल बन करके आया हूँ और जो मैंने तुम्हें दिखाया ये एक मेरा मोजिज़ा था। अगर तुम्हें लगता है कि मैं जादूगर हूँ तो तुम अपनी सल्तनत और पूरी दुनिया से तमाम के तमाम जादूगरों को इकट्ठा कर लो, अगर वो मेरा मुकाबला कर लें। जब फिरौन ने ये चैलेंज सुना तो उस फिरौन ने तमाम के तमाम दुनिया भर में रुक के भिजवाए के तमाम दुनिया भर से बादशाह, उस तमाम के तमाम दुनिया भर से उसने जो है वो नजूमी और फिर जो जादूगर बुलवाने इकट्ठे कर दिए। हत्ता के एक वक्त मुकर्ररा पर उसने तमाम जादूगरों को बुलवा लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, तमाम के तमाम मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर एक हैबत में पड़ जाते हैं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कलाम किया और फरमाया कि ए जादूगरो और ए फिरौनियों और ए फिरौन, मैं अल्लाह का रसूल मूसा हूँ, तो तुम्हें चाहिए कि मेरे रब की इबादत करो, मेरे रब के हुजूर सजदा रेज हो जाओ, वरना अनकरीब अल्लाह का गजब तुम पर आएगा और तुम अपनी अपनी जगहों पर साकित रह जाओगे और तुम्हें कोई भी ना बचा सकेगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें गिनवाना जब शुरू की, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो जाते हैं। तमाम के तमाम जो जादूगर थे वो आज जब वो अचंभे में पड़ जाते हैं कि यार आखिर आज तक हमने बहुत बहुत बड़े जादूगरों को देखा, लेकिन ये कैसा जादूगर है, इसने जो जादू करने से पहले हमें खुतबा दिया, ऐसा लगता है कि ये खुतबा हम पहले कहीं सुन चुके हैं। और फिर उन तमाम के तमाम जादूगरों ने एक जुबान होकर के कहा कि ए मूसा, क्या तुम अपना अपना जादू पहले दिखाओ या हम अपना जादू दिखाएं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अपना जादू दिखाओ। तमाम के तमाम दरबार जमा, तमाम के तमाम दरबार में सारे के सारे लोग उन जादूगरों को देखते हैं। जब उन जादूगरों ने, किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में रुमाल था, किसी के हाथ में रस्सी थी, जमीन पे डाली, सबके सब रेंगने वाले सांप बन जाते हैं। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा डाला तो वो एक अजदहा की शक्ल ले लेता है और फिर उस अजदहा की शक्ल लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो अजदहा उन तमाम सांपों को खा जाता है। ये देखकर तमाम के तमाम जो जादूगर थे वो सजदे में गिर जाते हैं और तमाम के तमाम कहते हैं ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि ये बल्कि अल्लाह का रसूल और अल्लाह का नबी है। और तमाम के तमाम एक जुबान होकर कहते हैं आमंतु बिल्लाही मूसा व हारून, यानी हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। यानी तमाम के तमाम जादूगर मुसलमान हो जाते हैं। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार से चले जाते हैं। फिरौन जब अपने दरबारियों का ये हाल देखता है और फिर फिरौन उनको
हज़रत मूसा को पकड़ने का हुक्म देता है कि हज़रत मूसा को लाया जाए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने का हुक्म देता है, इधर मेरा रब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही फरमाता है, "ऐ मूसा, अपने साथियों को लेकर इस बस्ती से निकल जाओ।" तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर बस्ती से निकलते हैं, तो क्या देखते हैं, सामने एक बहुत बड़ी दरियाए नील बह रही है। आप वहाँ पर जाकर रुक जाते हैं। आप अल्लाह से दुआ करते हैं, "ऐ अल्लाह, अब मैं इससे पार कैसे जाऊँ?" रब आप पर वही फरमाता है, "ऐ मूसा, अपने डंडे को इस पानी पर मारो।" जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डंडे को पानी पर मारते हैं, तो वो पानी 2 भाग में कटकर खड़ा हो जाता है और एक सूखा रास्ता आपके लिए छोड़ देता है। आप अपने साथियों को साथ उस दरिया से निकल जाते हैं। जैसे ही फ़िरौन उस दरिया में अपना घोड़ा डालता है, तो क्या देखता है, पानी दोनों तरफ से मिल जाता है और फिर अल्लाह तबारक व तआला उस फ़िरौन को उसी दरिया में गरक कर देता है और फिर उस फ़िरौन का नामो निशान सफ़े हस्ती से मिटा देता है। हज़रात, अब तकरीबन कुछ 100 साल पहले अभी एक लाश मिली थी और उस लाश पर जब साइंटिस्टों ने रिसर्च की, जब वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की, जब छानबीन की, तो पता चला कि इस लाश पर जो पानी के असरात इस लाश की हड्डियों में जो नमक के असरात मिले, वो तकरीबन कई हजार साल पुराने थे। जब इस तरह की एक लाश मिलती है, तो तमाम के तमाम जो वैज्ञानिक होते हैं, वो तमाम के तमाम बहुत पुरानी किताब उठा करके देखते हैं, शायद इसके बारे में किसी किताब में कुछ तो इशारा मिले। कई किताबों में कई इशारे मिलते हैं, लेकिन कोई इशारा ऐसा नहीं मिलता जिसके ज़रिए इस लाश तक पहुँचा जाए। फिर उनमें कोई इंसान कहता है कि मुसलमानों की भी एक किताब कुरान मजीद है, जिसको वो अपने लिए हक पर मानते हैं और उसके हर हर हर्फ और ज़बर ज़ेर पेश पर अपना ईमान रखते हैं। क्यों ना कुरान पाक भी उठाया जाए। जब कुरान पाक उठाया जाता है, एक आलिम दीन जो बहुत ही ज़्यादा माहिरत माहिर थे, उनको बुलाया जाता है और फिर वो पूरा वाक़या बयान करते हैं। तो वो आलिम दीन कहते हैं कि हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इस वाक़ये को बयान फरमाया है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि ये फ़िरौन है, जिसको हमने दरियाए नील में गरक किया और उसकी लाश को क़यामत तक के आने वाली नस्ल के लिए निशानी इबरत बनाकर रख दिया। और फिर जब वो देखते हैं कि फ़िरौन का ज़माना कितना पुराना है, तो जितना पुराना फ़िरौन का ज़माना था, उतनी पुरानी लाश को देखते हैं, तो वो अचंभे में पड़ जाते हैं कि यार, ये तो 1400 साल पहले कुरान पाक आया और फिर ये कुरान पाक हमें इतनी पीछे तक की कैसे नसीहत दे रहा है। तो इसका मतलब तमाम के तमाम जो जो वैज्ञानिक होते हैं, वो अपना सर सजदे में रखते हैं और फिर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। हज़रात, हमारा मज़हब इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है कि ये हर तरह से लोगों के मसाइल हल करता है और फिर हर तरह से लोगों की ज़रूरियात पूरी करता है। हज़रात, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ये वीडियो ईमान अफ़रोज़ वाक़या था, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर उनका भी ईमान को कामिल करें। अस्सलामु अलैकुम।